السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے پارہ 29 میں سورت الانسان، سورت الدہر بھی کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 3 سے تلاوت ہوگی۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ Kindly share the screen. Who's going to share the screen today? شمیم نہیں ہے آج۔ Kindly do the needful. چلے تو ہم پڑھ رہے ہیں سورت الانسان، سورت الدہر، پارہ نمبر 29 میں ہے۔ الانسان، تمام انسانوں کا بھی ذکر ہے، آپ کا اور میرا ذکر ہے، اور اسپیشلی ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے فرسٹ انسان پیدا کیا۔ باجی آدم علیہ السلام، ہاں میں نے کیا بولی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ I'm so sorry. آدم علیہ السلام، استغفر اللہ۔ ہاں
تو یہ ہم انسان ہے، نسیان سے بنے ہیں، اور کیسے ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہے. اور جزاک اللہ خیرہ فار کریکٹنگ. And we so confidently we are talking as if you're right. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس ہماری ریالٹی بتا رہے کہ انسان کیسا ہے. آیت 1 میں ہم نے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیا نہیں آیا انسان پر وہ وقت پورے وقت میں سے کہ نہیں وہ تھا کوئی چیز قابل ذکر. کہ میرا اور آپ کا کیا ذکر تھا؟ کچھ بھی نہیں. اگر کوئی انسان آج 60 سال کا ہے تو 60 سال پہلے کیا اس کے بارے میں کوئی نام و نشان، اس کا کوئی ذکر، اس کی کوئی پہچان تھی اس دنیا میں؟ بالکل نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چھوٹی سی زندگی، تھوڑا سا وقت دیا. اب اس وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے وہ بھی بتایا کہ ہم کو اللہ نے کیسے پیدا کیا. نطفے سے، صرف 1 سیل نہیں، امشاجن، 2 ماں اور باپ دونوں کے سیل سے، ریپروڈکٹیو سیل سے. اور وہ کیسا ہے؟ نطفہ حقیر. اس سے انسان کو پیدا کیا. پھر اس لیے پیدا کیا تاکہ کیا کیا جائے اس انسان کے ساتھ. کیوں پیدا کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے؟ آیت 2 میں کیا فرمایا؟ بتائیے. باجی دیکھنے اور سننے کی طاقت دی اور انہیں آزماتے ہیں اللہ پاک. ہاں، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہمیں سننے اور دیکھنے والا بھی بنایا ہے. اب یہ سننے اور دیکھ کر ہم کیا سنیں اور کیا دیکھیں؟ یہ آیت 3 میں بتا دیا. انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے ہدایت دی اس کو راستے کی. تو یہ راستہ ہمیں ڈھونڈنا ہے، یہ ہدایت ہمیں تلاش کرنی ہے، ہمیں ہدایت اللہ سے مانگنی ہے. اللہ نے ہدایت تو دے دی ہے، قرآن بھی دے دیا ہے، رسول بھی بھیج دیے ہیں، لیکن کیا ہم اس راستے پر ایک بار آ جائے تو اسی راستے پر کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہر روز اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، اس کی تڑپ کرنی ہے، اور اس راستے پر جمے رہنے کے لیے ہمارے کان اور آنکھیں کھلی رکھنی. کان اور آنکھیں کیا ہے؟ یہ ہمارے بہترین سینسری آرگنس ہے، جس کی وجہ سے ہماری سمجھ، بوجھ، عقل، ہمارے دل، دماغ تک باتیں پہنچتی ہے. تو اس ہدایت کے راستے پر جمے رہنے کے لیے یہ کان اور آنکھوں کی بہت ضرورت ہے. ہم اپنے کان اور آنکھیں کیسی کھلی رکھیں تاکہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو اینالائز کر سکے کہ کیا میں ابھی بھی سیدھے راستے پر ہوں. کیونکہ اس راستے سے بھٹکنا، پھسلنا بہت آسان ہے نا. کیونکہ سیدھا راستہ کتنا ہے؟ سیدھے راستے ایک ہے یا بہت ہے؟ صراط مستقیم ایک ہے یا بہت سارے ہیں ایک ہی سیدھے ہے راستے؟ باجی. صرف ایک ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سب کیا ہے؟ بھٹکانے کے راستے باجی. یس، وہ سب گمراہی ہے. تو آپ سوچیں نا کہ اتنے سارے راستوں میں سے صرف ایک راستہ، اس لیے ہم کل بات کر رہے تھے چوائسز کی، کہ ہر سیکنڈ ہمیں چوز کرنا ہے کہ میں کیا کروں، کیا نہیں کروں، کس چیز سے بچوں، کیا بولوں، کیا نہیں بولوں. تو بولنا تو ایک ہی بات ہے، لیکن 100 باتیں نہیں بولنی. سننی تو ایک ہی بات ہے، 1000 باتیں نہیں سننی. سوچنی تو ایک ہی صحیح بات ہے،
लेकिन हजारों बातें सोचने से अपने आप को रोकना है. सो दीज डूज एंड डोंट्स, आंखें और कान हमारी मदद करेंगे इसमें. बट हम लोग इतना कैजुअली अपने कान और आंखों को यूज करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड. जो मिला वो पढ़ा, जो मिला वो देखा, जो मिला वो सुना. We are not very particular about our listening, about hearing and our seeing. बराबर? क्योंकि कान और आंखें हमेशा खुली रहती है नहीं? खुली रहती खुली है बाजी. ना? हाँ, और तुमको उसके लिए कुछ पेमेंट भी नहीं करना है, लेकिन हिसाब देना पड़ेगा कि हमने क्या इन कानों से सुना और क्या आंखों से देखा, किस चीज से परहेज किया. दैट विल डिसाइड कि हम सीधे रास्ते पर जमे रहे या भटक गए. फिर फरमाया कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं हिदायत के. इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा. चाहे तो शुक्रगुजार हो और चाहे तो नाशुक्रे बन जाओ. कल हमने कुछ डेफिनेशंस लिखी थी, सना आप पढ़ोगे क्या? ऑपोजिट्स लिखे थे हमने. बाजी, ईमान का ऑपोजिट कुफ्र, शुक्र का ऑपोजिट नाशुक्री, शुक्र का ऑपोजिट शिकवा और शुक्र का ऑपोजिट कुफ्र. हाँ, अब मुझे बताइए कि शुक्र को हम ईमान से कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि ईमान का भी ऑपोजिट कुफ्र है और शुक्र का भी ऑपोजिट कुफ्र है, बराबर. तो क्या ईमान और शुक्र में इज देयर एनीथिंग कॉमन? कैन वी कनेक्ट इट, सुरैया? कैन वी कनेक्ट ईमान एंड शुक्र? क्या ये एक ही बात है, अलग अलग बातें हैं? जल्दी बोलो, कौन बोलना चाहता है? जी बाजी, वी कैन कनेक्ट. हाउ? जल्दी जल्दी. अगर हमारे पास ईमान है तो हम शुक्रगुजार, यानी इट्स वन एंड द सेम थिंग. यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट अल्लाह हैज गिवन एंड यू हैव टू बी थैंकफुल टू हिम. ओके, और कोई एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? अल्लाह का शुक्र है माँ जी कि हम ईमान वाले हैं, मुसलमान घर में पैदा हुए. वेरी गुड. अल्लाह का शुक्र हम अदा करेंगे कि हमारा ईमान है कि हम अल्लाह को जानते भी है, पहचानते भी है और अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र भी अदा करते हैं. और कैसे कनेक्ट करेंगे इसको? इसको आप कनेक्ट कीजिए ऑपोजिट से. कि हम शिकायतें किन चीजों की करते हैं? शुक्र का ऑपोजिट शिकायत है, राइट? हम शिकायत किन चीजों की करते हैं, बताओ? बाजी, अल्लाह ने बहुत नेमतें दी हैं, बट कुछ अगर ऊंच नीच होती है वो नेमतों में तो हम शिकायत करने बैठ जाते हैं. हाँ, यानी जो चीजें मेरे पास नहीं है उसकी मैं शिकायत करती हूँ, नंबर 1, बराबर. और नंबर 2, कुछ चीजें, कुछ नेमतें मेरे पास है पर वो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है, तो मैं उसकी शिकायत करती हूँ. तो दो चीजें हमारी शिकायत की आज हम चेक कर रहे हैं. नंबर 1, इज इट ओके हम ये डिटेल्स में जा रहे हैं क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की बातें हैं, राइट? तो क्या था? एक तो वो नेमतें जो मेरे पास नहीं है, अल्लाह ने जो मुझे नहीं दी है उसकी मैं शिकायत करती हूँ. और दूसरी, कुछ नेमतें हैं बट वो मेरी मर्जी की नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तो उसकी मैं शिकायत करती हूँ, बराबर. अब इसको हम ईमान से कैसे जोड़ेंगे? देखिए, ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक बहुत बड़ी ब्रांच है, तकदीर पे भरोसा करना. तकदीर पे भरोसा करना. तो अगर हम अपनी तकदीर को ही नहीं मानते, अल्लाह ने मेरी तकदीर में जो लिखा है वो मुझे दे दिया, लेकिन मेरी शिकायत है कि अल्लाह ये क्यों नहीं दिया? भाई वो तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो नहीं दिया, या तुम्हारी तकदीर में ऐसा ही लिखा था, यही होना था, ये नुकसान होना था तो हुआ. तुम्हारी तकदीर में लिखा था नहीं जाना कहीं पे, तो तुम नहीं गए. तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हमारे वहां पे ईमान कितना कमजोर होता है और इसलिए हम शिकायत करते हैं. अभी एक और बताइए कि क्या हम ईमान को शिर्क के साथ, सॉरी, शुक्र को शिर्क के साथ कंपेयर कर सकते हैं? जल्दी बोलो.
शुक्र और शिर्क में कोई कर सकते बच्चे। बताओ कैसे? अभी मुझे कुछ मिला तो अल्लाह को क्रेडिट नहीं, मैं अपने आप को दूंगी कि मैं स्मार्ट थी इसलिए मुझे ये मिला है। वेरी गुड सूर्या। तो हम क्या करते हैं कि वहां पर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि मैं इतनी स्मार्ट हूँ। जैसे कि वो कारून की बात थी, फिरौन की बात थी, है ना। मैंने आपको कल कहा था कि मुझे याद दिलाना, दो बातें हम डिस्कस करेंगे, दो एग्जाम्पल्स है। एक एग्जाम्पल है हाबिल और काबिल का, है ना। तो हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की नहीं हुई। तो क्या हुआ, काबिल को गुस्सा आया, वो जेलसी हो गई अपने ही भाई से, और कहाँ तक पहुंचा दी इस नाशुक्री ने, क्योंकि उसने एक्सेप्ट नहीं किया। प्रॉब्लम क्या होती है हमारी कि हम लोग है ना कबूल ही नहीं करते कि ये कैसे हो गया कि मेरे भाई का कबूल हो गया, मेरा कबूल नहीं हुआ। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक्य में कि क्यों मेरा बाप मेरे भाई से इतनी मोहब्बत करता है, हमसे नहीं करता है। तो वो जेलसी का भी रूट क्या है, नाशुक्री, शिकायत। और ज्यादातर ये आपस में घरेलू मामलात में होती है। तो कहाँ पर पहुंचा दिया काबिल को कि काबिल ने अपने भाई का मर्डर कर दिया, और कहाँ पहुंचा दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को कि अपने ही भाई को उन्होंने मर्डर करने की कोशिश की, यानी अगवा करके वहां पर डाल दिया। अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। एक और एग्जाम्पल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम का। आपको पता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहाँ छोड़कर गए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम? काबा में लगी। मक्का में छोड़ के गए थे, है ना। और अपनी बीवी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी मक्का में छोड़ के गए थे। फिर वो जो वाकया हुआ, काबे की तामीर हुई और वो बच्चे की कुर्बानी का भी वाकया आपको मालूम है। अभी एक वाकया उनकी बहू का, और ये हम औरतों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। अब वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में आराम से खुश है। अब एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए मिलने के लिए अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम। घर पर गए तो बहू ने दरवाजा खोला। बहू ने नहीं पहचाना कि ये कौन है, ये मेरे ससुर है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इस्माइल कहाँ है? तो वो बोली कि वो तो जंगल में गए लकड़ियां काटने। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कैसे चल रही तुम्हारी जिंदगी, क्या हाल, सब खैरियत? तो बहू ने शिकायत का पिटारा खोला कि बस हमारी तो जैसी तैसी कट रही है और बिल्कुल हमारे हालात अच्छे नहीं है, और हम बिल्कुल वी आर नॉट हैप्पी फाइनेंशियली। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना बोले कि जब इस्माइल वापस घर आ जाए तो उनसे कहना कि तुम्हारे अब्बा आए थे और अब्बा ने एक मैसेज दिया है, और ये मैसेज दे देना इस्माइल को। और वो क्या है कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं लगती, इसे बदल लेना। तुम्हारे घर की चौखट, दरवाजे की चौखट ठीक नहीं लगती, इसे बदल लेना। और चले गए। फिर इनको रियलाइज हुआ कि ओ ये अब्बा थे, मीन्स मेरे ससुर थे। अब जब आए तो उन्होंने शौहर से बात कह दी। अब शौहर को क्या मैसेज मिल गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को अब्बा का क्या मैसेज मिल गया? चौखट ये चेंज करना। अच्छा उनके जरीन कहती है। घर के हालात सही नहीं है। अच्छा, उनको मैसेज मिला कि तुम्हारी बीवी चेंज बीवी करना। चेंज कर दो, चौकट बदली कर दो मीन्स। हाँ हाँ। क्यों क्यों ऐसा सुरैया? उन्होंने क्या देखा अपनी बहू के अंदर, कौन सी क्वालिटी देखी? नाशुक्री बाजी। नाशुक्री। तो यहाँ घर की चौखट से मुराद अपनी बीवी थी।
समझ आया, यानी बहू, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहू। तो आपको पता है कि फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनको तलाक दे दी अपनी बीवी को, और क्योंकि खुद भी रियलाइज करते होंगे ना रोज कि ये कितनी कंप्लेन करती है, कंप्लेन बॉक्स है, शिकायतें ही करती है, नाशुक्री करती रहती है। जो बंदों का नाशुक्रा होता है वो अल्लाह का भी नाशुक्रा होता है, और जहाँ पे शिकायत होती है फिर वहां पे रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि कुफ्र होने लगता है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से क्या दुआ की थी, याद है ना, अपनी औलाद और अपनी नस्लों के लिए? ईमान वाले बनाना। और क्या दुआ की थी? ईमान वाले बनाना। इसके अलावा अल्लाह मेरी नस्लों में खैर देना बन क्या खैर देना? खैर। की। जब अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं तुम्हें खलीफा बनाने वाला हूँ, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, और मेरी औलाद का क्या मेरी औलादों को भी अल्लाह तो नबी और रसूल बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, मेरा वादा किसको पहुंचता है और किसको नहीं पहुंचता? मेरा वादा जालिमों को नहीं पहुंचता। समझ आया? तो अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया कि अगर तुम्हारी औलाद में से जो औलाद जालिम होगी, नेक नहीं होगी, तो उनको नबूवत नहीं मिलेगी, और जो नेक होंगे उनको मिलेगी। तो यहाँ से हम अब कनेक्ट कीजिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिक्र हो गई कि अगर मेरी बहू नाशुक्री है, यानी कुफ्र करती है, तो फिर इसकी औलाद क्या सीखेगी इससे? फिर अगर इसकी औलाद इससे यही सीखेगी, आने वाली औलाद, तो फिर इनके अंदर नबूवत और खैर और ईमान कहाँ से रहेगा? इसलिए उन्होंने अपने बेटे को मैसेज दिया कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, बिकॉज वो नाशुक्री है। और उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी की, इस बीवी को तलाक दे दी। अब नेक्स्ट टाइम फिर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, और उन्होंने फिर से आए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं थे। फिर बहू से बात की और पूछा कि कैसे कैसे है तुम लोग के हालात, सब खैर खैरियत? तो वो बोली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हो गया, बोला कि मेरे बेटे से कह देना कि तुम्हारे घर की ये चौखट बहुत अच्छी है, इसे संभाल के रखना। व्हाट इज द मैसेज? क्या मैसेज था इसका मतलब? आपकी बीवी बहुत अच्छी है, इसको संभाल के रखें। क्यों अच्छी है? खूबसूरत है इसलिए? पैसे वाली है शुक्र इसलिए? जी गुजार है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली। समझ आई बात? तो कितनी जरूरी है ये शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी में। और ये शुक्रगुजारी जहाँ नहीं होती, शिकायतें होती है, वहाँ सारे मामलात दुनिया के भी बिगड़ जाते हैं, और आगे आने वाली नस्लें भी। अब देखिए, अगर माँ ताने देती है ना, तो बच्चे भी ताने देना सीखते हैं। अगर माँ शुक्रगुजार है तो बच्चे भी शुक्रगुजारी करते हैं। सही है गलत है, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। और ये वाकया अगर आपने फर्स्ट टाइम सुना है तो यू कैन शेयर द रिफ्लेक्शन एट द रिफ्लेक्शन टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अब हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। शुक्र के बारे में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ हदीस हम पढ़ेंगे, क्विकली पढ़ लेते हैं, देन वी मूव अहेड। देखिए, कुरान पाक में एक तो अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया, ल इन शकरतुम ल अजीदन्नकुम। क्या मतलब इसका? ये सूरत इब्राहिम की ही आयत नंबर 7 है, स्क्रीन पर नजर आ रही है। ल इन शकरतुम, अगर तुमने खूब अल्लाह का शुक्र अदा किया तो क्या है, ल अजीदन्नकुम, फिर बेशक मैं बहुत ज्यादा दूंगा तुमको। कौन फरमा रहे? अल्लाह ताला। हम ज्यादा बढ़ा के देंगे तुमको, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आयत, सॉरी नेक्स्ट हदीस, ये वाली।
یہ ہے صحیح بخاری کی روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی. کب دکھائی گئی تھی؟ معراج کی رات میں. میں نے وہاں عورتوں کو زیادہ پایا. وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر یعنی شرک کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے جو ایک طرح کا کفر ہے، اور احسان نہیں مانتی اپنے شوہر کا. اگر تو کسی عورت سے عمر بھر احسان اور نیکی کا سلوک کرے، یعنی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ عمر بھر احسان اور نیکی کا سلوک کرے، لیکن ایک بات اس کے طبیعت کے خلاف ہو جائے، اس کی مرضی کی نہ ہو، تو فوراً کہہ دے گی میں نے تجھ سے کبھی آرام اور سکون نہیں پایا. یہ عورت اور بیویوں کی فطرت بتائی گئی ہے کہ شوہر کتنا ہی اس کے ساتھ اچھا کرتا رہے، اگر ایک بار اس کے ساتھ اس کی مرضی کا معاملہ نہ کرے تو بیوی فوراً کہہ دیتی ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، تم نے تو میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں. یہ ہے ناشکری بیوی. اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسی کی وجہ سے زیادہ تر عورتیں جہنم میں جائے گی. اللہ تو رحم کر. استغفر اللہ. Are we ready for this? Isn't the time? Isn't it the time now to stop complaining? کیا ابھی بھی ہم اپنی شکایتیں بند نہیں کریں گے؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا چوائس از یورز. شکر ادا کرو جنت میں پہنچ جاؤ. دنیا میں ہی اپنی جنت بھی بنا لو شکر ادا کر کے. کیونکہ جتنا ہم شکر ادا کرتے ہیں، شکر کا مطلب شکر، اپنی زندگی کو ہم میٹھا خوشنما بنا دیتے ہیں، پازیٹیوٹی سے بھر دیتے، اور جتنی شکایتیں اتنی کمپلینس اتنی نیگیٹیوٹی اپنی زندگی میں ہم زہر گھول دیتے اپنے ہاتھوں سے، اور اپنے گھر کو ہی جہنم بنا دیتے ہیں شکایتیں کر کر کے. سو چوائس از یورز. اب بتاؤ اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اچھا یہ حدیث کوئی پہلی بار نہیں پڑھی، ہم نے کتنی بار پڑھ چکے؟ مجھے نہیں لگتا کسی نے بھی یہ حدیث پہلی بار پڑھی. پھر کیا ہماری شکایتیں بند ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہر چیز کی شکایت. شوہر کی نہیں تو موسم کی شکایت، اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے، اتنی ٹھنڈی ہے اتنی بارش ہے. یا اللہ بارش آتی ہے تو بھی شکایت، اللہ کی رحمت ہے. ہاں میں ہوتی بچے تو اتنا شکایت. شور کرتے، ہاں بچے اتنا شور کر رہے، ارے اللہ کا شکر ادا کرو کہ بچے ہیں. بچے شور نہیں کریں گے تو کون بڑے کریں گے؟ ہاں بچے نے ادھر گندا کر دیا، بچے نے یہ کر دیا، بچے کو بچہ ہی نہیں رہنے دینا چاہتے کہ بچہ پیدا ہو اور وہ بڑا ہو جائے بالکل مچور، نہ بچے کو غلطی کرنے دیتے ہیں. سو ہر چیز میں ہماری شکایتیں. isn't it؟ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے اور خوب شکر ادا کرنے والا بنا دے. اوکے اور کچھ حدیث رسول اللہ نے یہ والی قرآن میں سورت ابراہیم میں یہی والی آیت ہم نے ابھی پڑھے، اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ شکر ادا کیا تو زیادہ دوں گا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، اگر تم نے شکایت کی تو یقین جانو میرا عذاب بہت بڑا ہے، بہت سخت ہے. تو یہ کوئی چوائس ہے ہمارے پاس؟ اب تو ہمارا راستہ ہی بند ہو گیا ہے ناشکری کا، کمپلین کا. عذاب چاہتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. چلیے آج ہم لوگ سب نیت کر لیتے ہیں کہ
آج سے ہم کوئی شکایت کوئی کمپلین نہیں کریں گے. اس کا یہ بھی مطلب ہوگا کہ ہمارا ایمان پختہ ہو جائے گا کہ الحمد للہ اللہ کلی حال، اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے، میں اپنی زبان پر کبھی شکوہ نہیں کروں. یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے صحابہ اکرام جنگ کے میدان میں لڑ رہے دشمن سے اور تلوار سے ہاتھ کٹ گیا تو بس اتنی سی آواز نکلی، ہوتا ہے نا ہمارے کسی کی انگلی کٹ جائے ذرا سی کچن میں تو ہماری ایسی آواز نکلتی ہے، تو کوئی چلاتا ہے کوئی روتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی کیا فرمایا؟ کیا فرمایا کسی کو یاد ہے؟ اتنی سی جو ریاکشن تھی نا، کیا تھی ریاکشن؟ ایسی آواز. تو اس پہ کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر اس کے بدلے بسم اللہ کہتے تو فرشتے ہاں. یس، الحمدللہ. یعنی وہ ریاکشن کے بدلے بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں تھام لیتے، اٹھا لیتے تم کو. سبحان اللہ. کیونکہ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر اس کے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ہم لوگ تو باپ رے باپ، کچھ نہیں بھی ہوتا ہے تو اتنا اس کا ڈھنڈورا دکھاوا شو آف. اور اگر اللہ کا شکر ہے کہ اگر ہم اب ایسے ریاکشنز نہیں دیتے ہیں تو کیا لگتا ہے سب کو کہ اس کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں، اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ارے بھائی تکلیف سب کو ہوتی ہے، انسان ہے نا. لیکن وہ اللہ کی خاطر کوئی صبر کر رہا ہے نا تو اس کو صبر بھی نہیں کرنے دیتے. ابھی ہماری صبر کی آیتیں بھی آ رہی ہے آگے. الحمدللہ. چلے لیٹس موو آن. کائنڈلی شیئر دی آیات. آیت نمبر 4. اب یہاں پہ دو راستے تھے 3 میں، یا تو شکر گزار بنو یا تو ناشکری کر کے کفر کرو. اب آیت 4 میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بتا رہے جو کفر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کر کے رکھا ہے. آیت 4، انا اعتدنا، بے شک ہم، اعتدنا تیار کیا ہم نے. who is sharing the screen? kindly share. بے شک ہم تیار کیا ہم نے للکافرین کافروں کے لیے. کیا تیار کیا؟ سلاسل، سلاسل زنجیریں، چینز سکلیاں، واغلالن اور توق فندہ، وسعیرا اور بھڑکتی ہوئی آگ. ان کافروں کے لیے، ناشکروں کے لیے، شکایت کرنے والوں کے لیے اللہ نے کیا تیار کر کے رکھا ہے؟ ویلکم کس چیز سے ہوگا؟ زنجیروں سے. ہاتھ میں بیڑیاں جکڑی جائے گی اور گلے میں فندہ توق پہنایا جائے گا، اور اس سکلیوں میں توق باندھ کر اس کافر کو کہاں ڈال دیا جائے گا؟ سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ میں. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے کہ جہنم کی آگ میں ڈالنے سے پہلے کافر کی سائز، اس کافر جہنمی کی سائز کیا کر دی جائے گی پتہ ہے آپ کو؟ کافر کی ایک داڑھ، داڑھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1 مولر، جسے ہم چباتے ہیں نا، ہمارے دانت جو پیچھے کی داڑھیں ہوتی ہے، تو کافر کی ایک داڑھ کی سائز احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. یہ ایک ہمارا دانت ہے نا، وہ دانت اگر احد پہاڑ کی سائز کا ہو جائے تو وہ انسان کی سائز کتنی بڑی ہو جائے گی؟ سوچو کتنے پہاڑوں کے برابر. کیوں اتنی بڑی سائز کر دی جائے گی اس جہنمی کی؟ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جہنم کی سزا کو بھگتے، اور اس کی کھال، اس کی سکن 70 گز موٹی کر دی جائے گی. کین یو امیجن؟ جو ہماری سکن ہے، ذرا اپنی سکن کو ہاتھ میں لو ایسے،
और ऐसे चुमटी लेके देखो कि हमारी स्किन की कितनी है थिकनेस, कि इसमें से इंजेक्शन कैसे देते हैं तो बराबर अंदर तक चले जाता है क्विकली। इस खाल को, स्किन को 70 गज मोटा कर दिया जाएगा। एक रान, रान का मतलब क्या होता है? थाई। एक रान पहाड़ के बराबर कर दी जाएगी। यानी जहन्नमी की पहले साइज इतनी मैग्निफाई करके बड़ी कर दी जाएगी, फिर वो जहन्नमी की बॉडी, उसका जिस्म लंबा चौड़ा करने के बाद फिर जंजीरों में पिरोकर, गले में तोक डालकर, फिर उस साईरा भड़कती हुई जहन्नम की आग में फेंक दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। सुरैया, वी कैन नॉट सी योर स्क्रीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। यस, नाउ वी कैन सी। फिर से गया, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। आयत 5। तो ये दो रास्ते थे, या तो तुम काफिर बन जाओ नाशुक्री करके, तो ये होगा उसका अंजाम। और दूसरा कौन थे? शुक्रगुजार बंदे। तो शुक्रगुजार बंदों के लिए आयत 5 में आता है, इन्नल अबरार। देखिए, शुक्रगुजारों को अल्लाह ताला ने किस नाम से पुकारा? इन्नल अबरार। अबरार का मतलब नेकोकार। क्या है इनकी सबसे बड़ी नेकी? कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और लोगों का भी शुक्र अदा करते रहे। उनके लिए क्या होगा? देखिए, अबरार में आपको बर वर्ड मिलता है, बिर नेकी। तो अबरार का मतलब नेकोकार, शुक्रगुजार, दोनों मीनिंग मिलेंगे। कहाँ होंगे अबरार और उनको क्या मिलेगा? यशरबूना, वो पिएंगे। शराब वर्ड है इसमें, दैट मीन्स टू ड्रिंक। दे विल गेट टू ड्रिंक। क्या पीने को मिलेगा? मिन कासिन। अब ये बताना क्या जरूरी है कि अबरार और शुक्रगुजार कहाँ जाएंगे? ऑफ कोर्स जन्नत में। उनको पीने के लिए क्या मिलेगा? मिन कासिन, जाम होंगे, पीने के जाम, ग्लासेस। वो पीने में क्या होगा? कान मिजाजुहा काफूरा। वो पीने के जो ड्रिंक्स होंगे उसमें मिजाजुहा, आमेजिश, मिक्सिंग, क्या मिक्स किया जाएगा? देखिए, मिजाज का मतलब हमारा जो हम एक दूसरे से पूछते कैसे मिजाज है आपके, वो नहीं है। ये अरबिक का मिजाज का मतलब होता है टू मिक्स, मिलाना। क्या मिलाया जाएगा उनके पीने में? काफूरा। क्या है ये काफूरा? वो आगे हम देख रहे हैं। काफूरा नाम की एक नहर है जन्नत में, और उस नहर में से इनके जन्नतियों के ग्लासेस में मिक्स किया जाएगा। काफूर इज सच अ फ्लेवर्ड ड्रिंक। खुशबू भी उसमें, जायका भी उसमें, और ऐसा टेस्ट और ऐसा फ्लेवर दुनिया में ना देखने मिलेगा ना चखने मिलेगा। ये सिर्फ जन्नत में है काफूरा, जो शुक्रगुजार लोगों को, नेकोकार अबरार को पीने मिलेगा। कैसी है ये नहर? काफूरा नाम की नहर है। उस नहर, लिख लीजिए, काफूर नहर का नाम है, जन्नती नहर। अब उसके आगे पढ़ेंगे। आई नहीं, आयत नंबर 6। ये क्या है काफूरा? एक चश्मा, एक नहर, वन स्प्रिंग। यशरबू बिहा, पिएंगे उस नहर से, उस नहर में से पिएंगे। कौन पिएंगे? इबादुल्लाह। कौन पिएंगे उस नहर में से? इबादुल्लाह। कौन है इबादुल्लाह? अल्लाह के खास बंदे, अल्लाह के खास बंदे।
اور اس सूरा में हमने क्या पढ़े, कौन है अल्लाह के खास बंदे, क्या सिफत बताई गई? अल्लाह के शुक्र अदा करने वाले। नंबर 1 अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले। नंबर 2 अबरार वर्ड भी आया है, नेक काम करने वाले। हाँ, हमेशा ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने वाले। देखिए हमेशा तो हम नहीं कर सकते, मैं आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ कि 24/7 नेकी के काम करने वाले कौन है? फरिश्ते। उनके लिए क्या वर्ड आया है? बरीरा, किरामन बरीरा। बरीरा का मतलब हमेशा नेक, 24 घंटे। पर हम इंसान है ना, सूरत का नाम ही इंसान है, तो इंसान कोई भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, पर वो कोशिश करते रहता है, कोशिश करते रहता है नेकियों की, कोई चांस नहीं छोड़ता। और जब नेकी नहीं कर रहा होता है तो गुनाहों से बचता है और तौबा इस्तगफार करते रहता है, तो बनता है अबरार। शुक्रगुजार बनता है और नाशुक्री से बचता है। तो ये कौन करेगा बताओ मुझे, ऐसे कि 24 घंटे जिसको फिक्र हो कि नेकी ही करूं, गुनाह से बचूं, शुक्र ही अदा करूं, नाशुक्री ना करूं। ये कौन से होते हैं बंदे? कौन सा लेवल है ये? इबादुल्लाह। इबादुल्लाह। लेकिन इनका लेवल पूछ रही हूँ मैं, मतलब क्वालिटी, क्या खास क्वालिटी होती है ऐसे बंदों की कि वो 24 घंटे इसी फिक्र में रहते हैं? सुरैया? तकवा वाले के बाद जो अल्लाह की तकवा नाराज। वाले, तकवा वाले, यू आर राइट। यानी इसका मतलब है बहुत कॉन्शियस, बहुत कॉन्शियस, हर वक्त अलर्ट, गाफिल नहीं। देखिए जो लोग थोड़ी देर के लिए भी गाफिल हो जाते हैं ना अल्लाह से, फिर जैसे ही गाफिल होते हैं तो मालूम है ना कौन आ जाता है? शैतान आ जाता है। शैतान आ जाता है, और फिर वो हमसे वो सब करवा लेता है जो हम जब हम अलर्ट होते तो नहीं करते। तो जरा मौका मिलता है ना उसको हमसे गफलत का, वो टाइम पे डाका मारता है। तो मुत्तकी वो होता है कि वो इतना कॉन्शियस है कि वो अपने आप को गफलत में जाने ही नहीं देता। कैसे नहीं जाने देता गफलत में, बताओ, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, कैसे बताओ जल्दी सुरैया? बाजी के जिक्र में डिस्टरबेंस है है बेटा। और हाँ हाँ हमेशा अल्लाह की नाराजगी की इसको फिक्र है कि ये काम से अल्लाह मेरा नाराज तो नहीं होगा। हर काम में वो हाँ, गौर फिक्र करेगा। यू आर राइट। लेकिन इसके लिए ना हम लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत कोशिश। तो देखिए हमारी कोशिश कैसी हो, आज हम थोड़ा सीख लेते। कैसी कोशिश करेंगे कि पहले ना मैं अपने जो फर्ज है ना वो सब करती रहूं, फर्ज इबादत हो या घर के फर्ज काम। चाहे अगर मैं एक औरत हूँ तो अल्लाह की इबादत मुझ पे फर्ज है, और मेरे बच्चों के, मेरे घर के, मेरे शौहर के भी मुझ पे कुछ फराइज है ना, तो दोनों ही बैलेंस करने। तो मैं अपने ना सब फर्ज काम करूं, फिर उसके साथ साथ अल्लाह का जिक्र करती रहूं, है ना, और अल्लाह का शुक्र करती रहूं। ठीक है, ये 3 काम हम साथ साथ कर सकते हैं। अपने फर्ज इबादत भी, घर के फर्ज काम भी, साथ साथ में अल्लाह का जिक्र और अल्लाह का शुक्र, ये साथ में हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। अब जब फर्ज पूरे हो जाए हमारे, यानी इबादत नमाज के भी फर्ज हो जाए और घर के कामों के भी फर्ज हो जाए, उसके बाद किस पे फोकस करेंगे? बोलो। इबादत पे। नफिल, नफिल, नफिल यानी एक्स्ट्रा, है ना। अब एक्स्ट्रा क्या है? इबादत में एक्स्ट्रा क्या है? या तो आप नफिल नमाज पढ़ रहे हो, या आप तस्बीह पढ़ रहे हो, या कुरान पढ़ रहे हो। और घर के कामों में नफिल क्या है एक्स्ट्रा? कि घर वालों को भी हम अल्लाह से हाँ, जोड़ने के काम करें, और घर के बाहर अब हमको एक्स्ट्रा करना है कि यतीम, मिस्कीन और इन लोगों के भी हम कुछ काम आ सके, है ना, और रिश्तेदारी भी निभानी है। तो ये सारे काम हमारे नफिल एक्स्ट्रा में आ गए।
अब इतना सारा टाइम हमारा हो गया, साथ साथ में हम जिक्र और शुक्र और इस्तगफार भी कर रहे हैं। अब घर से बाहर निकलते हैं ना, तब चांसेस किस चीज के बढ़ जाते हैं? जब लोगों से मिलते हैं तो किस चीज के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे? गफलत गफलत के। गफलत के। किस चीज की गफलत होगी पता है आपको? अब आप लोगों से मिलोगे ना, उनकी बातें सुनोगे, फिर आप देखोगे कि उसने तो ये पहनी है, उसने तो नया ये खरीदी है। अब हमारी क्या आ सकती है? थोड़ी सी जेलसी, जलन, हसद। फिर कि कोई हमसे कुछ कह देगा तो गुस्सा आ सकता है, कहीं पे हमारा कंपटीशन बढ़ सकता है ना? और फिर यही चीजें हमें शिकायत, नाशुक्री की तरफ लेकर जा सकती। तो फिर हमको बहुत अलर्ट रहना है बाहर जाते वक्त, कि हम उस वक्त घर से निकलते वक्त क्या करके निकले? नियत करके निकले बातें, ये इतना अच्छी अलर्ट बात। रहना पड़ेगा, है ना? हाँ, देखिए एक हदीस पढ़ के सुनाती हूँ, घर से निकलते वक्त की हदीस। एक तो आपको पता है घर से निकलते वक्त क्या पढ़ना है हमको? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लजीम। इससे क्या फायदा होता है? जब हम ये पढ़ लेते हैं ना घर से बाहर निकलते वक्त, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब ये पढ़ लेते हैं तो क्या होता है पता है आपको? एक फरिश्ता स्पेशली अल्लाह ताला हमारे साथ जोड़ देते हैं, और वो फरिश्ता हमें हिदायत के रास्ते पर ले जाता है। और वो फरिश्ता कहता है कि तुझे हिदायत भी मिल गई, तुझे तौफीक भी मिल गई, और तेरा काम भी अब पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि तूने ये पढ़ लिया। आसान कर देते अल्लाह ताला। अब ये वाली हदीस पढ़ी सुनिए। मुस्नद अहमद की रिवायत है। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर से निकलने वाला जब घर से निकलता है, उसके दरवाजे पर दो झंडे होते हैं। उसके दरवाजे पर दो झंडे होते हैं, टू फ्लैग्स। एक फरिश्ते के हाथ में झंडा होता है और दूसरा झंडा शैतान के हाथ में होता है। अगर वो इंसान उस काम के लिए निकला, वो इंसान उस काम के लिए निकला जो अल्लाह का पसंदीदा काम है, तो फरिश्ता अपना झंडा लेकर उसके साथ हो लेता है, और उसके वापस आने तक वो फरिश्ते के झंडे के तले, यानी उसकी हिफाजत में होता है। यानी अल्लाह ताला एक बॉडीगार्ड ही भेज देते हैं आपके साथ, और बॉडीगार्ड कोई और नहीं, फरिश्ता है, क्योंकि तुम नेक काम करने के लिए निकले हो। और अगर वो अल्लाह की नाराजगी के काम के लिए निकला है, तो शैतान अपना झंडा लगाए उसके साथ हो लेता है, वापस आने तक वो शैतान के झंडे के तले रहता है। नाउ व्हाट डू वी चूज? इसलिए कल से हम बात कर रहे हैं चॉइसेस। हमको चूज करना है, हमको डिसाइड करना है हमको क्या करना है। अल्लाह अकबर। हाँ, समझ आई बात? अब इबादुल्लाह की बात हो रही थी। हाँ, ये वाली आयत हमको पूरी करनी है। वे मेरी बहुत वन ऑफ द फेवरेट आयत है, आयत नंबर 6 जो हम पढ़ रहे हैं। ये जो काफूरा नाम की नहर है जन्नत में, आई नहीं यशरबू बिहा, उस चश्मे से पिएंगे, उससे इबादुल्लाह, अल्लाह के खास बंदे। तो क्या उस नहर पे जाना पड़ेगा जन्नत में बार बार काफूरा पीने के लिए? नहीं, उस नहर पे नहीं जाना पड़ेगा बार बार पीने के लिए। क्या क्या होगा उस बंदे के साथ जन्नत में? देखिए, युफज्जिरूनहा, युफज्जिरूनहा तफजीरा। वो
युफज्जिरु में फज्जर वर्ड है यानी फाड़ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो फाड़ लिए जाएंगे उसके लिए, तफजीरा फाड़ना। जहां पे भी ये जन्नती होगा, अल्लाह का बंदा जन्नत के किसी भी हिस्से में होगा और उसका दिल चाहेगा कि मुझे अभी काफूरा नहर में से ही पानी पीना है, वही वाला ड्रिंक मुझे चाहिए, तो बस उसके दिल में ये ख्याल आते ही जहां भी वो जन्नती होगा वहीं पर ये काफूरा नाम की नहर वाला फाउंटेन फट पड़ेगा उसी जगह पर। फाउंटेन समझते हैं आप? क्या वर्ड है फाउंटेन के लिए उर्दू में? फवारा बाजी। फव्वारा, यू राइट। तो जहां पे खड़ा है ना वहीं से ये काफूरा का फव्वारा उड़ने लगेगा और वो उसमें से पी लेगा। कौन? ये इबादुल्लाह, ये अल्लाह का खास बंदा, ये अबरार, हमेशा नेकी की फिक्र करने वाला, ये अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा, वो जन्नत में जहां चाहेगा वहां खड़ा होकर बस तमन्ना करेगा तो वहीं से ये काफूरा नाम का फव्वारा फूट पड़ेगा और वो उसमें से पी लेगा। सुभान अल्लाह, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ इंटरेस्टिंग। कौन है ये खुशकिस्मत लोग? तो खुशकिस्मती, दुनिया में तो किस्मत अल्लाह ने हमारी बना की है, दुनिया में अल्लाह ने हमारी तकदीर लिख दी है, लेकिन जन्नत और जहन्नम हमारी चॉइसेस है। वी हैव टू चूज। और ये चॉइस ये नहीं कि बस हमने सोच लिया जन्नत मिल जाए तो जन्नत मिल जाएगी, उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। क्या बंद करनी है? शिकायतें। क्या बंद करने हैं? गुनाह। क्या बंद करने हैं? शैतान के रास्ते, गुमराही के रास्ते। क्या शुरू करना है? शुक्र, जिक्र। क्या शुरू करना है? नेकियां। क्या बनना है? अल्लाह का बंदा। अब अल्लाह का बंदा, इबादुल्लाह का मीनिंग कौन बताएगा? सुरैया के अलावा। सुरैया तुम बाद में बताना, आई नो यू नो इट। अल्लाह का बंदा कौन होता है? जल्दी बोलो। अल्लाह के अल्लाह की नजदीक नेक बंदा बाजी। अच्छा, दीदी आप बोले। अल्लाह की रजा के लिए हर काम करे। हम्म, ओके। और कोई? चांद आंटी, एनीबडी एल्स? सना? अल्लाह का बंदा कौन? बोलो जल्दी। बाजी सूर्य, अभी आप बोलो। उबादुल्लाह हाँ में, सना। बाजी उबादुल्लाह वर्ड में अब्द आ रहा है, दैट मीन्स स्लेव, जो स्लेव जो बिल्कुल अल्लाह के विल पे सबमिट कर दे। वेरी गुड सना, नाउ यू नो इट। हाँ सूर्य, इफ यू इवन इफ यू वांट टू से। सना इज राइट 100%। बाजी मैं बोलो। ट्राई करूं। हाँ बोलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है, इबादुल्लाह। किसकी तरफ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी गुड। नसीमा? साहाबी लोग बाजी, साहाबी लोग। अच्छा, ये लोगों की बात थोड़ी हो रही है, कोई भी बन सकता है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। उसके लिए क्या करना है? तो अब्दुल्ला में जैसे सना ने बोली कि अब्द का मतलब गुलाम। तो गुलाम वो होता है कि जो अपनी मर्जी नहीं चलाता। क्या गुलाम की अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जी सकता है? वो नहीं। तो गुलाम किसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है? अपने मालिक के। तो अगर हम अब्दुल्ला है, अगर मैं गुलाम हूं तो फिर मेरा मालिक कौन? अल्लाह। तो हमें सच्ची मानों में, सही मानों में अल्लाह का गुलाम बनना है। लेकिन कैसे बनना है अल्लाह का गुलाम? खुशी खुशी, अपनी मर्जी से हम अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दे। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने जो भी कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब कुछ किया खुशी खुशी। खुद को, अपने आप को आग में फेंक दिया, बेटे को ज़बह कर दिया। अभी देखिए कि वो गए थे वहां पे, तो आसान होता है ये कहना कि अपने बेटे से कि तू बहू को छोड़ दे, लेकिन उन्होंने किसके खातिर किया?
اللہ کی خاطر کیا. تو ہم کو ایسا عباد اللہ بننا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کی زندگی آپ دیکھیے کہ بچپن ہی میں پیدا ہونے سے پہلے ابا گزر گئے, نو شکایت. کتنے 6 سال کے تھے امی گزر گئے, نو شکایت. دادا نے سنبھالا, دادا گزر گئے, نو شکایت. چاچا نے سنبھالا, پھر چاچا ایمان نہیں لائے, نو شکایت. ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا, نو شکایت. بیٹے پیدا ہوتے ہی فوت کر دیے گئے, نو شکایت. آنسو ضرور بہے, دل ضرور دکھا, لیکن کوئی شکایت نہیں کی, الحمدللہ. اور اللہ کے ہر حکم کے مطابق ہر کام کیا, احسن طریقے پر کام کیا, کبھی اف تک نہیں کیا, الحمدللہ. تو یہ ہے عباد اللہ کی پہچان. اب ہمیں اگر ایسے چشمے سے, ایسے فواروں سے, ایسی نہروں سے یہ پینا ہے, جنت میں پہنچنا ہے, تو پھر کیا ہے ہمارا گول, کیا بننا ہے ہم کو؟ عباد اللہ. عباد اللہ. اب اس کو آیت 1 سے ریلیٹ کریں گے. آیت 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان, تو کیا تھا؟ تو کچھ بھی نہیں تھا. کیا تیرا کوئی ذکر, قابل ذکر تو تھا؟ تیری کوئی پہچان تھی؟ نہیں تھی. پھر تم دنیا میں آئے, اللہ نے تم کو پیدا کیا, جیسے چاہا پیدا کیا, جیسا نصیب بنایا ویسا بنایا. اب جی میں بلکیس بولنا چاہ رہی تھی لیکن وہ ہاں نہیں ہو امی رہا تھا. بولے وہی کہ اللہ کا بندہ وہ ہے, عباد اللہ وہ ہے کہ اللہ جو حکم دے میں وہ کروں, اور جس سے روکے میں اس سے رک جاؤں. رک جاؤ. سبحان اللہ, ایگزیکٹلی. بہت اچھی ڈیفینیشن امی. اب ہماری پہچان مل گئی ہے ہم کو. پہلے ہماری پہچان نہیں تھی. اب جب تک میں زندہ ہوں, میرے پاس ایک نام بھی ہے, میرا ایک وجود بھی ہے. پر ہم دنیا میں کیا بننا چاہتے؟ دیکھیے, ہم دنیا میں چاہتے کہ سب میری واہواہی کرے, میری تعریف کرے, میں ڈاکٹر بنوں, میں پیسے والا بنوں, میری گاڑی ہو, میں امریکہ جاؤں, میں دبئی جاؤں, میں لندن جاؤں, میں سوئٹزرلینڈ جاؤں, ہاں, میں یاٹس خریدوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ تمہاری پہچان اگر تم عباد اللہ بنا لو, اگر تم اپنی پہچان عباد اللہ بنا لو, تبھی تم کامیاب رہو گے. اب بتاؤ کہ ہمیں اپنے آپ کو کیا بنانا ہمارا گول اور ہمارا مقصد ہونا چاہیے؟ کیا؟ باجی خود کو عباد اللہ بنانا ہے. انشاءاللہ. اور آپ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں 7 اور 8 میں 9 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں جو عباد اللہ بن سکتے ہیں, ان کو کیا کرنا ہوگا. پھر وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیتوں میں پڑھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا تاکہ ہم عباد اللہ بن سکے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا